Hello everyone, welcome to Concept Booster classes, and today I am going to teach you the topic, very important topic, that is admission of a partner. And I am going to teach you the easy tricks to solve new profit sharing ratio, and it will be helpful for you in the examination and how to calculate new profit sharing ratio at the time of admission of a partner. So first of all, we have to learn the meaning of admission of a partner. So first question is, need to admit a new partner. Why new partner is admitted in the partnership firm? So the first reason is to introduce more and more capital in the business. Like I have taken one example. A and B are partners sharing profits in 3:2, and they have admitted C as a partner in the partnership firm. So the first reason is they want to introduce capital from the C, so they are admitting partner in the partnership firm. So the first reason to admit a new partner is to introduce more and more capital in the business. Now second reason is if they want to invite any talented, experienced, competent person in the partnership firm, then also they can introduce a new partner in the partnership firm. Now the third reason is to increase the goodwill and reputation of the business. If the person like C is having good reputation in the market, then also C can be admitted in the partnership firm by the A and B partners. And according to this, when the new partner is admitted in the partnership firm, then you know that according to section 31(1), a new partner is admitted in the partnership firm only when the all partners are agree to admit that partner. It means सभी पार्टनर्स का उस चीज़ के लिए एग्री होना बहुत ही कंपलसरी है. अगर वो सारे पार्टनर्स पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो एग्री नहीं है, in that case the new partner cannot be admitted in the partnership firm. Now we will start the topic calculation of new profit sharing ratio. For that purpose I have taken this question. In this question, A and B sharing their profits in 3:2, and C is admitted in the partnership firm for 1/5 share, and the first point is the C is admitted for 1/5 share. So how to calculate the ratio? First we have to take total ratio as 1 and minus 1/5. Okay, so in this manner we will calculate the profit sharing ratio. The remaining share is 4/5. Now we will calculate the ratio of A. A का शेयर सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A का पुराना शेयर कितना है, 3/5. ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय 4/5. So the total share of A 12/25. Now the calculation of B share of profit. B का यहाँ पे पुराना शेयर है 2/5, जिसको हमने 4/5 से मल्टीप्लाई किया. So the B's new share is 8/25. Now the C share, how to calculate C share? यहाँ पे हमें C का शेयर क्वेश्चन में गिवन है, that is 1/5. सो आपको इसको क्या करना है, 1/5 को इनके इक्वल बनाना है. तो हाउ टू मेक इक्वल, यहाँ पे 25 है तो आप इसको 25 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 5. सो द आंसर इज 5/25. नाउ व्हाट इज द न्यू रेशियो पार्टनर्स? 12:8:5. दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इन द केस 1. नाउ कम टू केस नंबर 2. C takes his 1/5 share equally from A and B. इस केस में क्या हो रहा है कि C जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना 1/5 शेयर जो है वो A और B दोनों पार्टनर से इक्वल रेशियो में ले रहा है. देन हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो? सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो C का शेयर है 1/5 उसको हाफ करना है. सो मल्टीप्लाई 1/2. ओके, तो आपका कितना है यहाँ पे 1/10. 1/10 आया. नाउ वी विल कैलकुलेट एज शेयर. ए का हम जब नया शेयर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देन हमें क्या करना है, पुराना शेयर ए का कितना है 3/5. ओके, माइनस हम करेंगे यहाँ पे जितना उसने दिया 1/10. तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 - 1. सो द न्यू रेशियो ऑफ ए इज 5/10. नाउ वी विल कैलकुलेट द शेयर ऑफ बी. बी का नया शेयर हमें निकालना है. यहाँ पे बी का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 2/5, माइनस हमने किया 110, क्योंकि दोनों से वो सी कैसे ले रहा है, इक्वल रेशियो में ले रहा है. तो 1/10 किया, 4 - 1 3/10. ओके, समझ में आ गया आप सभी को? नाउ वी विल कैलकुलेट द शेयर ऑफ सी. सी का शेयर कैसे निकालेंगे? अगेन वही करना है हमें. सी का शेयर यहाँ पे है 1/5, तो उसको हमें इसके इक्वल करना है. हाउ टू मेक इक्वल? इसको 10 बनाना है हमें. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 2/10. सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन द केस नंबर
2, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है केस नंबर 2। नाउ कम टू केस नंबर 3, सी टेक्स इज 1/5 शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। एंटायरली का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना पूरा का पूरा शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। सो हाउ टू कैलकुलेट, सबसे पहले हमें यहाँ पे ए का शेयर कैलकुलेट करना है। इन थर्ड केस व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए, 3/5, ओके। माइनस अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सी है वो अपना पूरा शेयर ए से ले रहा है, तो सी का शेयर यहाँ पे कितना है 1/5। तो आप 3/5 में से 1/5 को माइनस करेंगे तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया 2/5। नाउ वी विल कैलकुलेट बी शेयर। हाउ टू कैलकुलेट बी शेयर, बी का पुराना शेयर यहाँ पे 2/5। देयर इज नो चेंज इन द रेशियो ऑफ बी बिकॉज ऑल द कंप्लीट शेयर इज टेकन बाय सी फ्रॉम ए। तो यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया तो सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी शेयर इज 1/5 एंड नाउ द आंसर इज 2:1। दिस इज द न्यू रेशियो इन केस नंबर 3। नाउ कम टू लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 4, सी टेक्स इज 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 2:1। तो फोर्थ केस के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें ये निकालना है कि सी ने ए से कितना शेयर लिया। तो यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है 2:1। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सी का शेयर यहाँ पे कितना है 1/5, ओके। तो 1/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 क्योंकि यहाँ पे इनका शेयर है 2:1, ओके। तो कितना आया 2/15। इट मीन्स सी पार्टनर विल टेक 2/15 फ्रॉम ए। नाउ द सी पार्टनर विल टेक 1/5 into 1/3. This share will be taken by the C from partner B. So the ratio is 1/15. Okay. Now we will calculate new ratio of the partners. तो सबसे पहले हम यहाँ पे A का शेयर निकाल रहे हैं। तो A का आप देखिए पुराना शेयर कितना है 3/5 है पुराना शेयर। इसमें से हमने माइनस किया जितना A ने यहाँ पे C के लिए सेक्रीफाइस किया और जितना B ने सेक्रीफाइस किया। तो A का शेयर यहाँ पे आया 2/15, ओके। नाउ वी विल कैलकुलेट द शेयर फॉर B, 2/5 minus 1/15, ओके। इन दिस मैनर वी विल कैलकुलेट द रेशियो। यहाँ पे एलसीएम लेके हम कैलकुलेट करेंगे 9 minus 2 कितना आया 7/15। नाउ इसका हमने कैलकुलेट किया 6 minus 1 5/15 एंड लास्ट वी विल कैलकुलेट फॉर सी। सी का आपको पता है कैसे निकालना है, उसको इक्वल बनाना है। तो 1/5 सी का शेयर है, उसको 15 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो सी का शेयर कितना आ गया 3/15। सो द न्यू रेशियो इज 7:5:3 in the last case. So these are the 4 important cases that we can use at the time of calculating new profit sharing ratio at the time of admission. So these are the easy tricks, you can follow them, okay. Thank you so much.